Hello, everybody. This is very important chapter of 12th standard, which is electrochemistry. Here in physical chemistry, you get 5 marks question. And in 5 marks question, basically 3 marks question remains from numerical and 2 marks questions remains from the concept. So we have to finish this chapter by doing number of practices in numerical area. So we are going to take that particular part here. Electrochemistry, according to me, in this chapter, I have divided into 3 parts. That 3 parts you will say electrolysis, conduction, electrochemical process, and battery. Batteries, that is different one. And remember here, electrochemistry, what it explains exactly. Electrochemistry says relationship between इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद केमिकल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी से रिलेट करोगे. व्हाट डज इट मीन हियर? इफ यू आर गोइंग टू पास electricity, electrical means electricity you are going to pass, means flow of electrons. So chemical change takes place in a substance, means new chemical you can obtain in a substance, especially in electrolyte, that will make you understand that electrical energy is converting into chemical energy. Electrical is converting into chemical. Other way, if you're going to take here, that chemical reaction takes place the way you have seen in battery. Chemical reactions hote hain. Chemical reactions like redox reaction, chemical energy when you are saying, and especially chemical reaction, that is your redox reaction. And if redox reaction takes place, that means loss of electrons and gain of electrons simultaneously. So that is going to make movement of electron from one side to another side. And it's going to generate electricity. Electrical energy, will say. So this is that part here. Electrochemistry is branch of science which deals with relationship between electrical energy with chemical. Vice versa, you can say here. So electrical is converting into chemical. That is your electrolysis. So ये part अभी आज करेंगे हम लोग. कंडक्शन नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल और फिर बैटरीज करेंगे. Here electrolysis, this is process conversion of electrical energy into chemical energy. Chemical change you will be expecting. Apparatus, we need electrolytic cell. Electrolytic cell means what? It has to provide 2 electrodes and connecting wire from outside. There should be supply current supply, you will say. So that is electrolytic cell. Chemicals which are used here, that is electrolyte, it should be ionic or polar, through which electricity can be passed and we can expect chemical change. Here also we are going to see qualitative and quantitative. What is qualitative exactly? Which type of chemicals you are going to obtain after passing electricity, that is called qualitative. And how much you are getting after passing electricity is called quantitative. So today our in first video, it's going to be qualitative electrolysis. And what do you get in exam, board exam, or for competitive exams you'll be needing, we are going to do it right now. First one, you'll see here, electrolysis of molten sodium chloride. Before starting this, we have to see one part, that there should be electrolytic cell. An electrolytic cell when we are making, it should be there should be 2 electrodes. What's the meaning of electrodes? Electrode stands for what? Through which electricity can pass. Normally it is made up of carbon. And here we are having electrolyte which we take, which gets dissociated into iron. In electrodes को जब बाहर से connect कर देंगे battery से, negative positive, so this will start behaving as negative, this will start behaving as positive. एक बात याद रखनी होगी कि negative का मतलब हुआ electron rich, positive का मतलब electron का crisis. And this is created by the cell which is present outside. अंदर इनका जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, यहाँ पर आएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है यहाँ इधर. तो क्या चेंजेस आता है इस केमिकल में वो देखना है. सबसे पहले molten sodium chloride. Molten sodium chloride, solid sodium chloride बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं हो सकता है, because they are closely packed due to attraction. Solid state में आपने पढ़ा है, इनको अलग करना मुश्किल है. जब तक इनको अलग नहीं किया जाएगा, ये solid state का है, तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का सोच भी नहीं सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट कराने के लिए फ्री आयंस होना चाहिए.
मॉल्टन में थोड़े अलग हो जाते हैं ये लोग। यहाँ पर हो गया आपका मॉल्टन NaCl जो हम लोगों ने बोला है। अब देखेंगे कि किस तरह से इसमें नया केमिकल बन करके आएगा सोडियम क्लोराइड से। जैसे NaCl उठाया and it's in molten state. This is going to break here as Na plus and Cl minus because it's electrolyte थोड़ा जैसे ही पास कराया इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक कर गया। अब इनके एक्शन बिकॉज दे आर चार्ज वन दे विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा इसको देखना होगा आपको। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर नेचुरली वन विच गेट्स अट्रैक्टेड Na प्लस जाएगा। Na प्लस जाके करेंगे क्या वहां से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेंगे एंड इट्स गोइंग टू मेक सोडियम सॉलिड। इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल। क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है इसलिए इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, कैथोड नेम इनका नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं है, कैथोड का नाम उसके एक्शन पर है। कैथोड मीन्स रिडक्शन, ये ध्यान रखनी है। कैथोड इज दैट प्लेस, कैथोड इज अ केमिकल, कैथोड इज एनी सब्सटेंस वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। जैसे एजुकेशन में स्टूडेंट्स दे कीप ऑन रिसीविंग नॉलेज, उनको लेक्चर सुनते रहना है चुपचाप, तो उनके लिए हम लोग कैथोड वर्ड यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड Cl minus will go and Cl minus will release electrons, लेकिन एक बार में 2 Cl रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल Cl2। तो दिस इज गैस हियर। तो गैस के लिए हम लोग बोलेंगे और इस इवॉल्व इसके लिए सॉलिड के लिए बोलेंगे डिपॉजिटेड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्शन इज कॉल्ड एनोड एंड ये आपका ऑक्सीडेशन बताएगा। So what do we say? What is the result? Result is sodium gets deposited ऐसे लिखना होगा आपको। नया चेंज आया, सोडियम क्लोराइड के बिना आप रह नहीं सकते हो एंड सोडियम के साथ रह नहीं सकते हो। सोडियम खाओगे तो उड़ जाओगे। तो एक नया बिल्कुल नया केमिकल आया आपका सोडियम क्लोराइड से। सोडियम गेट्स डिपॉजिटेड ओवर कैथोड, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। एंड एनोड पर व्हाट आर वी गोइंग टू से? ऑन एनोड आप इस तरह से लिख देना, उसके लिए भी क्लियर, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यही रिजल्ट आता है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट, क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आ जाइए एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड we are having two chemicals now. One is very strong electrolyte which is dissociated completely into Na plus and Cl minus. Second is H2O which is not dissociating. This sign indicates what? कि आपका थोड़ा सा हिस्सा टूटा है but H2O is still there in a container. So when you are going to pass electricity here, now you are having Na plus, Cl minus, H plus and OH minus. सारी चीज है यहाँ पर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा? Which is moving towards negative electrode. हमारे पास अब हम दो और नॉमिनीज हो गए, Na प्लस एंड H प्लस आयन। यहाँ देखना होगा कि इन दोनों में किसके पोटेंशियल ज्यादा है टू गेट रिड्यूस, मतलब स्पीड में कौन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो पता चला H प्लस आयन। ये आपके पेज नंबर 68, 69, 70 पे दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज। तो H प्लस जाएंगे, समझ आ गई बात। लेकिन इस H प्लस के आगे थोड़ा एक चीज ध्यान रखना होगा कि ये पूरी क्रेडिट नहीं ले सकता बिकॉज इट्स नॉट डिसोसिएटेड कंप्लीटली। कौन कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसको होते हुए दिखाएंगे हम लोग? H2O को। इनसाइड स्टोरी इज व्हाट? वर्क कर रहा है आपका H प्लस, काम कौन कर रहा है? H प्लस। दिस इज वर्किंग राइट, लेकिन क्रेडिट कौन ले जाएगा? H2O को। ये बात को ध्यान रखनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन गया है? विल नॉट से H प्लस गया है। अंदर की बात है कि H प्लस काम कर रहा है, हम लोग को बताना होगा कि H2O ने किया है काम। तो 2H2O, व्हाई डिड आई टेक 2H2O? क्योंकि ये 2H2O ही प्रोवाइड करेगा 2H प्लस आयन एंड 2 OH माइनस। हर जगह आप ये नीचे वाली चीज ये नहीं दिखाइएगा। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, थोड़े से अपने दिमाग लगाइएगा कि काम कौन कर रहा है। मेरी एक बात फिर से सुनोगे जिन्होंने मिस किया है, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, H2O को दिखाएंगे कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया जबकि ये इसका H प्लस गेन किया है इलेक्ट्रॉन।
क्या बना है H2 एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ खासियत है कि सब फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते हैं, तो ये जनाब बचे हुए हैं, अभी 2 OH माइनस बच जाएंगे। ठीक है, ये और जगह पे आप दिखाइएगा नहीं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन आया है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आपका Cl माइनस नहीं तो OH माइनस जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है ये रिडक्शन हुआ है तो इसको हम लोग आराम से कैथोड बोल सकते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन आ रहा है? इन दोनों में से कोई एक जाएगा, तो उन दोनों में से कौन एक है? कॉन्सेंट्रेटेड में Cl माइनस एंड डाइल्यूट में OH माइनस। दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिमिलर हैं, तो यहां पर आप क्वेश्चन कर दीजिएगा या लिखिएगा फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, in concentrated solution Cl minus is getting oxidized, Cl minus releases electron and it's forming Cl2 जब सोल्यूट ज्यादा होगा तो, क्योंकि दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सेम है, सॉरी नॉट ज्यादा है, सिमिलर है। और इसमें डाइल्यूट में, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, इसके लिए आपको समझना होगा। इस बार फिर ये जनाब जाएंगे तो H2O का कौन सा हिस्सा OH माइनस में भी कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? O माइनस 2। काम कौन करेगा? O माइनस 2 विल रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O2। ये आप सोच लो, इतना 2 ऑक्साइड्स के लिए कितना H2O को लेना दिखाना होगा, क्योंकि क्रेडिट तो किसको मिलेगा? H2O को। 2 H2O minus 4 electrons to form O2 plus 4H plus ion। जो काम कर रहे हैं उसके आप दिखा दीजिएगा, और जितने की जरूरत है उसके हिसाब से 4 H2 हम लोगों ने ले लिया, 4 H and 2 ऑक्सीजन। This O2 has been made। ठीक है, so what are we going to write as electrode? इलेक्ट्रोड क्या लिखनी है हम लोगों को? रिजल्ट क्या लिखनी है? यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखनी होगी हम लोगों को? रिजल्ट इज, and how are you going to make its result? You just listen। Result is hydrogen gas is evolved at cathode। कैथोड पे कौन आया? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। एनोड पर इन कॉन्सेंट्रेटेड Cl2 gas and in dilute oxygen gas। अच्छे से इसको पूरे ढंग से लिख लीजिएगा। होप यू इट्स क्लियर टू यू। dilute sulfuric acid using silver using inert electrode। केवल H2SO4 है लेकिन पानी है। H2SO4 यहाँ ब्रेक करेगा आपका 2H plus ion, सल्फेट आयन। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर यहां पर भी वाटर है, दिस इज एक्वस हियर। व्हाट इज देयर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर H प्लस के चांस, कौन से H प्लस आयन जाएंगे? खुद दिमाग लगाओ, जो अकेला है और ज्यादा है वही उसी को जाना चाहिए। ये तो इसके साथ नखरा है कि पूरे खानदान चले जाते हैं, तो दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। इस बार H2 इंडिपेंडेंट वे में पैदा होगा, एंड दिस इज योर कैथोड। पॉजिटिव में सल्फेट एंड OH माइनस में, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सल्फेट जाएगा, सल्फेट minus 4 electrons, minus 2 electrons, sorry, H2O8 minus 2, and this changes automatically into SO2. So what is our answer here? In this case also, as sulfate, we are taking dilute sulfuric acid, लेकिन हमने ये जो इंडिकेट किया सल्फ्यूरिक एसिड का, ये आपका पानी के अंदर है, और पानी के अंदर होने की वजह से आप यदि सल्फेट बता रहे हो तो सल्फेट वाले से ज्यादा वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। वाटर कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड
ये कॉन्सेंट्रेटेड में सल्फेट का चांसेस है, एंड बहुत वेरी डाइल्यूट इट्स गोइंग टू बी वेरी डाइल्यूट, देन वाटर गेट्स चांस। वही वाला रिएक्शन जो हमने पिछला किया है, बहुत डाइल्यूट होगा तभी होगा। रिजल्ट क्या आए? कैथोड पर ये एनोड की तरह एक्ट किया आपका, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, H2 गैस इज इवॉल्व, क्लियर कट। एनोड पर SO2 in concentrated solution and O2 in very dilute. वेरी डाइल्यूट वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो आप इसी को दिखाइएगा, ये वाला चीज, ठीक है। अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। मींस इस बार आपका जो इलेक्ट्रोड्स है वो खुद सिल्वर से बना हुआ है, पहले इनर्ट से बना हुआ रहता था, सिल्वर से बना हुआ यानी कि मेटल है, जान लो इसके बारे में। ये इसमें भी एक टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज करने की। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट लिए, AgNO3 breaking here as Ag plus and NO3 minus. So this Ag plus ion is gaining electron, and what is also there? ये Ag plus ion नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या करने की कोशिश करेगा वो आप सोच लो। What it's going to do over there? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छे, इस बार कंपटीशन है H प्लस से, तो इसको क्यों चांस मिलेगा? क्योंकि आप सीरीज देखोगे ना तो Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा है। So this is gaining electron and it makes silver solid. उसी समय नेक्स्ट क्या होगा? दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन लोग जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होना क्या है, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करना है, इनमें से कोई एक जाएगा। लेकिन पता चलता है जो मेटल खुद है, जैसे ही दौड़ के ये लोग गया, किसका नंबर आएगा पॉजिटिव पर, तो करना क्या उनको? ऑक्सीडाइज। पता चला मेटल बोलता है कि भाई हम खुद ही स्मार्ट हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो आप लोगों को चांस क्यों देंगे? तो वो खुद ऑक्सीडाइज कर जाता है। मतलब घर का लोग ही देखो, फ्रॉम इलेक्ट्रोड गेट्स ऑक्सीडाइज and it forms Ag plus ion, ठीक है। तो ये आपका मेटल बना कैथोड पर, यहाँ पर Ag प्लस आया, तो इस तरह से वो टिक नहीं सकता। ये एनोड होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपको दिख रहा है, ये ऐसे टिक नहीं सकता। ये लोग जो पीछे पीछे दौड़ के गए थे, उसमें से ये अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करता है AgNO3 माइनस के साथ। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा है, ये महसूस करते हैं कि हम NO3 के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक मोर स्टेबल सॉलिड। तो ये आपका यहाँ पर सॉलिड बन गया। तो रिजल्ट क्या आया? सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड ओवर कैथोड पर, कौन? सिल्वर। एनोड पर कौन? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। गेट्स डिपॉजिटेड, ठीक है, सही है। ये आपका CBSE का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जानबूझ के ये क्वेश्चन रहता है क्योंकि ये यूनिक है, जो कि मेटल खुद बना हुआ है। और हो सकता है आपको एक बार आया हुआ है कॉपर सल्फेट के साथ भी। तो ये ध्यान रखना है कि मेटल का इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ, क्योंकि मेटल खुद अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये लोग जब दौड़ के गए हैं तो कहते हैं कि हम खुद ही कर सकते हैं, हम आपको चांस क्यों दें, ये वाली बात उसकी आती है। अब आ जाइए सिल्वर इलेक्ट्रोड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, इस बार कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो मेटल इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये सिंपल है आपका। AgNO3 कुछ सोल्यूशन लिख दीजिएगा। AgNO3 ब्रेक किया Ag प्लस एंड NO3 माइनस में, फिर वाटर ब्रेक किया H प्लस एंड OH माइनस में।
नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन गया? Ag प्लस, जैसे पिछला हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Ag सॉलिड बनाया। पॉजिटिव पे कौन आए जनाब? ये जान लीजिए, इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। देन व्हाट विल गो? हु विल गो? वाटर। सही। रिजल्ट ये समझ आ रहा है ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यू केमिकल। रिजल्ट एट कैथोड, this is at anode. Cathode, silver gets deposited. Anode, oxygen gas is evolved. Is it okay? This way it has to be written. Last आपका copper sulfate aqueous solution. CSO4 breaks here as Cu plus 2, sulfate ion. Negative electrode, Cu plus 2 gains electron from Cu. Positive electrode, aqueous से water was also there. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका कंपटीशन वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड में सल्फेट विल लूज इलेक्ट्रॉन -2 and it changes into SO2. ठीक है। एंड डाइल्यूट में ये OH माइनस 2H2O -4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म। कौन सी चीज आप बोलेंगे? O2 + 4H +। ये हो गया हमारा रिजल्ट। रिजल्ट क्या डालेंगे? कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन एनोड कैथोड, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। एनोड पर oxygen gas is deposited. Oxygen gas is evolved in dilute and SO2 gas is evolved in concentrated solution. ठीक है, अच्छे से। तो इतनी दूर तक आपका क्वालिटेटिव था जिसको डिस्कस करना था हम लोगों को। खासकर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इलेक्ट्रोड वाला थोड़ा ध्यान रखना है और आप कीजिए इसको अच्छे से कंप्लीट। Then we will be coming here. Tomorrow we'll be coming with our next class will be coming with a quantitative approach. उसमें पूरे numericals होंगे and we'll be solving that.